Now, we'll be starting with lesson 2, the further issue of share capital. Now, in this, I'll be showing you all one trick, one technique, which any issue of capital comes, you will be able to frame an answer, and this is a procedure applicable for all the issues that you make. First thing, just let us understand, what do you mean by the term issue of securities? When I say issue of securities में क्या होता है? There is a company sells, कैसे सामान बेचते हैं वैसे ही वो अपने shares, debentures, securities बेच सकते हैं. Who do they sell it off to? They sell it off to various people who are ready to give money, investors. When the company sells off its stake, its securities, its shares, in return, what do the investors give? Money. Investors क्या दे रहे होंगे to get the securities? Money. ठीक है, हम लोग पैसे देंगे तो जाके रिलायंस अपने शेयर्स मुझे देगा. अब इस प्रोसेस को बोलते हैं इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज. नाउ टेल मी वन थिंग, isn't this issue of securities a method of raising money by the company? Reliance Industries ने पैसे रेज नहीं किए. Now they will further use for business purpose, and you will have a stake in the company. If the company performs well, your share securities price will increase, or you will get a certain return on your securities. Got the concept? Now, the issue of security, the ways of raising money, okay? You can raise money from various people. There are various techniques to raise money. सबसे पहला टेक्निक क्या है? I either go to the public. I go to the public and I raise money from the public. This process of raising money from public is called as an, what is it called? Public issue. सेम वे जैसे मैं पब्लिक के पास से रेज कर सकता हूं, आई कैन इवन से कि मेरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास से पैसा रेज करूं. I can even go to my existing shareholders and I tell my existing shareholders, hello, I want to raise more money. I'm ready to sell new shares to you. Do you all want to buy? I will give you all at a discounted price. Now, tell me one thing from the company. I want to understand your commercials. Is it wise to raise money from the public, or is it wise to raise money from the existing shareholders? Just make a guess. Public or existing shareholders? Public के पास से जाऊंगा तो सस्ता होगा मेरे लिए. What others feel? Public. Everyone saying public. Anyone else has a different opinion? So could you repeat the question? Yeah, the question is it more economical? Is it better or easier, less costly to raise money from public, or it is less costly to raise money from the existing shareholders? Existing shareholders. अभी देखो क्या होता है, कभी कभार दिस एंटायर कॉन्सेप्ट इन बिजनेस इज कॉल्ड एज क्रॉस सेलिंग. क्रॉस सेलिंग क्या होता है? तुम्हारे ऑलरेडी कस्टमर्स है, उधर बैठे हैं, तुम फटाफट जाके उनको ही ऑफर करो. एक मैसेज आएगा सबको कि यू कैन बाय इट एंड फिनिश इट ऑफ. सो दिस आई कैन से कि मेरे कस्टमर्स तो इधर ही बैठे हैं, existing shareholders पहले भी buy किए, they've already shown trust in my company. I can again just pitch to them and raise more capital. So मेरे को cost of acquisition कम होगा. Do I have to go outside to find a new buyer? No. Because if you know, the biggest expense in business is to acquire customers, is to go out and do marketing and get these people. Marketing cost money. कस्टमर्स को नोन अपना प्रोडक्ट बताना, उनको बिलीव करना,
to make them believe in your product. It takes a lot of time and efforts and money and lot of marketing. Might as well go to the existing shareholders and issue it to them. This process, when I go to the existing shareholders, now I know that I've come to the existing shareholders, I'm going to save a lot of money in marketing and a lot of money in making them believe in my product, because they already have shown belief. So I issue them at a certain discount. This process is called as a right issue. I can also raise money from my employees. I can even go, as I go to my shareholders, I can even tell my employees. What I'll tell my employees कि भाई company में काम करो. So see this technique of issuing. Can you tell me why would I want to issue shares and raise money from my employees? To read the good ones. What? To retain the good employees. To retain the It sort of employees. motivates them, right? Because of the same company, they'll want to work more towards the betterment of the company. Very good. Like an So ownership. they feel like a owner. So what happens? The employees, I give them a feeling of ownership. Feeling of ownership in the company, and they will work harder. Not only work harder, I can also retain them. आजकल बिजनेस में दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या आता है? मेरे एम्प्लॉइज को सिखाता हूं मैं, वो कॉम्पिटिटर के पास भाग जाते हैं. तो विद दिस आई विल फाइंड अ टेक्निक टू रिटेन द एम्प्लॉइज. इस प्रोसेस को व्हेन आई इशू इट टू माय शेयर होल्डर्स, इट इज कॉल्ड एज एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शंस. समझ में आया ये? देन I can also go and raise it from other private investors. For example, I can go, I don't go to general public. General public is like everybody, anybody and everybody can apply. In the second category, only existing shareholders can apply. In the third category, only employees can apply. In the last category, something called as preferential allotment, or I can call it as private placement. Private placement. Okay. Now, I can also find in outside buyers. For example, I have made a company and then I will go to various investors, like maybe SoftBank. I can go to any person who's ready to invest, and I know this guy, who he is, what he does, what he can add value to the table. So, and then I will allot shares to him specifically. This process, when I give it to private investors, okay, private offer है ये to selected investors. This process is called as private placement. तुम मुझे बताओ, is it better to go for private placement or public issue? अगर दोनों में उतना ही पैसा रेज हो रहा है, तो I should go for private placement or public issue? Private. Private placement. Private placement. Now see, in private placement, I already know who the party is. I will already know the party in advance. I know the investor in advance. Like for example, I know Mark Zuckerberg. I know what Mark Zuckerberg can add to the table. So I already know his nature. I have had various rounds of interaction with him, and I know that he is going to add value to the company. He will bring his own insights into the company. समझ में आया? So ये चीज प्राइवेट प्लेसमेंट भी बहुत बड़ा हिट होता है. आई डोंट वांट एनीबडी. अभी ये क्या होता है, यहाँ पे कोई रैंडम चलता फिरता इंसान भी पब्लिक में इन्वेस्ट कर सकता है.
कंपनी के अंदर आ गया, देन ही मेक्स नॉइज एंड ऑल ऑफ दैट. सो जनरली पब्लिक इशू में कोई भी बाय कर सकता है, एनीबडी एंड एवरीबडी कैन कम. सो दीज मेथड्स, okay, are preferred over public issue, because public issue involves a lot of time, money and efforts, and these are little easier to raise money and they have their own advantages, these methods. So which are the methods that I'm talking about? I'm talking about right issue, employee stock options, that is issuing to employees, private placement, issuing to individual shareholders. अब कंपनी लॉ में देखते हैं कि इसके सेक्शंस किस में है, मतलब मेरे को राइट इशू करना है तो क्या प्रोसेस है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस करना है तो क्या है, और प्राइवेट प्लेसमेंट करना है तो क्या है. टेल मी वन थिंग, इन नॉर्मल कंपनीज, इन अ प्राइवेट कंपनी अगर काम कर रहे हो, ये चारों में से सबसे ज्यादा कॉमन क्या होता होगा तुम्हारे हिसाब से? Right issue. राइट इशू. राइट इशू, ओके. व्हाट अदर्स फील? ESOPs. What do you all other anyone else feels? Preferential. Preferential allotment. तो actually ये ज्यादा कॉमन होता है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट. राइट इशू क्या होता है? ऑलरेडी शेयर होल्डर्स है, उनको मैं और शेयर्स दे रहा हूं. अब मैं तुमको लॉजिक बताता हूं, ठीक है. सोचो कि कंपनी ABC में ए ने भी इन्वेस्ट किया, बी ने भी इन्वेस्ट किया और सी ने भी इन्वेस्ट किया. ये तीनों का नाम क्या रखेंगे हम लोग? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स. अब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ने ऑलरेडी 30 लाख रुपए कंपनी में डाल दिए. अब मुझे बोलो, ये कंपनी में वापस और पैसा पंच करेगा क्या कोई अंदर? वो बोलेंगे भाई हमारे पास जो भी था कंपनी में लगा दिया, अभी थोड़ा बाहर के लोग को बुलाओ. समझ में आ रहा है? नो डाउट राइट इशू भी होता है, बट राइट इशू में ऑलरेडी पैसा लगा दिया है, हम लोग ऑलरेडी एग्जॉस्टेड हो सकते हैं पैसे से. तो उनके लिए मजा क्या होगा? हम लोग ने कितनी बार देखा है, व्हेन वी द प्रमोटर्स, ये जो ABC आर द प्रमोटर्स, दे हैव स्टार्टेड द कंपनी, दे लुक फॉर आउटसाइड इन्वेस्टमेंट्स. बाहर से पैसा आएगा तो मजा आएगा ना, और बाहर वाला बंदा एक्सपर्टीज लेके आएगा, उसको थोड़ा स्टेक बेचेंगे, तो न्यू हम लोग अलग अलग इन्वेस्टर्स को ढूंढेंगे. ये इन्वेस्टर्स हो सकता है मुकेश अंबानी. सोचो मैं पूरा मेरा बिजनेस प्लान मुकेश अंबानी के सामने पिच किया, एंड मुकेश अंबानी सेड आई लाइक योर बिजनेस, आई लाइक द 3 promoters, आई एम रेडी टू इन्वेस्ट 1 crore इनसाइड द कंपनी. तो ये जो मैंने इशू किया मुकेश अंबानी को, कौन सा वाला होगा ये? व्हाट विल दिस बी कॉल्ड? प्राइवेट प्लेसमेंट. इट विल बी कॉल्ड एज प्राइवेट प्लेसमेंट, या इसका दूसरा नाम क्या है? प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट. समझ में आया? तो ये नया इन्वेस्टर हो जाएगा मुकेश अंबानी. अगर मेरे एम्प्लॉइज को ही दूंगा तो ये हो जाएगा ESOPs. और ऐसा हो सकता है कि थोड़ा और पंप इन करना है, तो मिस्टर ए बोल रहा है ठीक है मैं और पैसा डालता हूं कंपनी के अंदर, मेरे को और शेयर्स दो, तो वो भी हो सकता है. दैट विल बी राइट इशू. अब देखते हैं कंपनी लॉ में कौन से सेक्शंस हैं. सो इशू ऑफ सिक्योरिटीज जब करना है, ये 3 मेथड्स है, तो इज गिवन अंडर सेक्शन 62 1A 1B and 1C. When I issue it to the existing shareholders, तो यहां पे आएगा if I issue it to my employees, तो यहां पे आएगा, and if I issue it to selected persons, it is called as preferential allotment. अभी राइट इशू के अंदर I'll tell you few special things about them and then we'll go to a common answer. कोई भी चीज होगा इसका कॉमन. नाउ एक काम करते हैं, पहले कॉमन एस्पेक्ट कर लेते हैं. कॉमन आंसर क्या होगा? सो कॉमन पॉइंट्स इन इशू ऑफ सिक्योरिटीज.
तो तुम नोटिस करोगे ये जो भी मेथड्स है इसको हम लोग डिटेल में भी देखेंगे इंडिविजुअली, बट काफी सारे कॉमन पॉइंट्स होंगे ये सारे चीजें करने में। तो एक बार ये पढ़ लिया तो तुमको घड़ी घड़ी वो सब में प्रॉब्लम नहीं आएगा। मुझे लॉजिकली बताओ कि मैं ये कोई भी इशू करूंगा, ठीक है, नाउ पे अटेंशन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये तुम्हारा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा इशू ऑफ सिक्योरिटीज का। ये टेक्निक ऐसी है जो अभी बता रहा हूं मैं, सब कंप्लायंस इसमें कवर हो जाएगा। सबसे पहली चीज, मैं जो भी ये इशू कर रहा हूं किधर कौन अलाउ करना चाहिए मुझे ये करने के लिए? Articles. It should be permitted, authorized in articles of association, ठीक है। फिर बाद में जब मैं इशू करूंगा, सेकेंड थिंग, when I make a issue I have to ensure that it is within my authorized capital, right? So you should ensure, check whether the issue is within ऑथराइज्ड कैपिटल। ऐसा नहीं हो कि तुमको परमिटेड किया है लॉ ने 1 करोड़ करने के लिए और तुमने 1 करोड़ तो ऑलरेडी कर लिया और रेस करना है, तो ऑथराइज कैपिटल के विद इन होना चाहिए। व्हाट इफ मेरा ऑथराइज कैपिटल एग्जॉस्ट हो चुका है और मेरे को और रेस करना है? Alteration of AOA. MO. So what I need to do if I want to increase my authorized capital, ये भी कंपनीज में बहुत बार होता है, पैसा रेस कर लेते हैं वो लोग, ऑथराइज लिमिट एग्जॉस्ट हो जाती है, फिर उनको उनका लिमिट और इंक्रीज करना रहता है। तो इंक्रीज इन ऑथराइज्ड कैपिटल कभी पे अगर लिमिट एग्जॉस्ट हो गया है, इसका स्पेशल फॉर्म आता है और सेक्शन भी है। सबसे पहले इसका फॉर्म इज गिवन इन SH7. SH7 is for increase in authorized capital. समझ में आया ये? तो अगर मेरा कैपिटल इंक्रीज हो गया, ऑथराइज कैपिटल मेरे को और इंक्रीज करना है, तो कौन सा फॉर्म फिल करना है? SH7। आगे देखते हैं। अभी ये सब हो गया, फिर बाद में चलो मेरा आर्टिकल्स ने भी अलाउ किया, मेरे ऑथराइज कैपिटल के अंदर भी है। Now I have to move ahead to do these things. Now this is ultimately a company. If you want to issue all of this, it is a company. तो someone has to allow ना कि हाँ भाई ऐसा करो, consensus होना चाहिए। तो पहले किसका consensus होना चाहिए कि ये करना चाहिए? These kind of Board issues. of Directors. तो सबसे पहले I have to convene a board meeting. I have to convene board meeting. Board meeting का सेक्शन ओके इज गिवन अंडर सेक्शन 173, कन्वीनिंग द बोर्ड मीटिंग। अभी तुमको धीरे धीरे खाली कॉमन आंसर है, लर्न कर लो। कोई भी तुम्हारा आएगा ना ऊपर के मेथड्स में, ये कॉमन पॉइंट से डाल सकते हो, क्योंकि बोर्ड मीटिंग तो बुलानी ही पड़ेगी। एक बार बोर्ड मीटिंग बुलाओगे, यू विल हैव टू एंश्योर कि नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग टाइम पे जाए। नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग लोगों को जाना चाहिए। इसके अंदर तुम रेजोल्यूशन पास करोगे, बोर्ड रेजोल्यूशन टू इशू डैश। अब तुमको क्या इशू करना है? ईसॉप इशू करना है, तुमको प्राइवेट प्लेसमेंट करना है, और क्या था, राइट इशू करना है, तो ये सब कर सकते हो। फोर्थ, बोर्ड मीटिंग आए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोला हाँ करना है, अभी किसका कंसेंट चाहिए? शेयर होल्डर्स का कंसेंट चाहिए। तो देन आई हैव टू कन्वीन अ जनरल मीटिंग। अब जनरल मीटिंग भी कन्वीन करना है, ठीक है, सो उसका भी नोटिस सेंड करना पड़ेगा लोगों को, नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग। नोटिस में क्या लिखा होगा? टाइम, प्लेस, एजेंडा, कि भाई किधर रखनी है मीटिंग, व्हाट विल बी द टाइम, प्लेस, अरेंजमेंट। दिस इज गिवन अंडर योर सेक्शन 101 ऑफ कंपनी लॉ। नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग इज अंडर सेक्शन 101। इसके साथ में तुमको, इसके साथ में हाँ, इसके अंदर यू हैव टू गिव अ
एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना पड़ेगा। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट क्या होता है? वो तुम्हारा मेंशन्ड है अंडर योर सेक्शन 102। नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज अ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। तुम लोगों को कब पता चला व्हाट इज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम? अभी तक भी तुम थोड़ा कंफ्यूज रहोगे कि भाई एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम्स होते क्या है, डेप्थ में नहीं पता है क्योंकि ये तुम्हारे लिए नया कॉन्सेप्ट है। तो तुमको लग रहा है नॉर्मल शेयर होल्डर्स को पता होगा ये सब? यस और नो? जब तुम लोग कॉमर्स स्टूडेंट्स को अभी अभी पता चल रहा है, तुमको लग रहा है कि नॉर्मल एक डॉक्टर को पता होगा क्या होता है राइट इशू? No. No. नो। तो इसके लिए तुमको एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना पड़ता है जो नोटिस के साथ में ही अटैच्ड होता है, एक्सप्लेन करते हुए कि राइट इशू क्या होते हैं, उसका पर्पसेस क्या होता है एंड ऑल द डिटेल्स अबाउट द इशू। समझ में आया? तो हमेशा नोटिस के साथ में जाता है तो यू कैन कम इन्फॉर्म्ड इनटू द कंपनी। फर्दर एक बार तुमने मीटिंग कन्वीन कर ली, देन यू विल पास विच रेजोल्यूशन? Special. स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने का। और स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया तो कौन सा फॉर्म भरेंगे हम लोग? MGT 14. MGT 14। 14. ठीक है। फिर नेक्स्ट, नाउ इमेजिन एक कोई मेंबर है कंपनी के अंदर, वो बोल रहा है मेरे को नोटिस मिला नहीं कंपनी का, मैं घर पे था नहीं, वो पोस्ट ऑफिस आया नहीं, और झगड़ा कर रहा है। अभी हो सकता है कि नहीं कि हम लोग ने किसी का नाम अपडेट नहीं किया, किसी का एड्रेस अपडेट नहीं किया और उसको नोटिस ही नहीं मिला, तो झगड़ा नहीं करेगा वो? तो इन ऑर्डर टू एंश्योर कि सबको इंफॉर्मेशन मिल जाए, तो व्हाट वी डू, वी मेक अ Publication. Announcement. public announcement in newspaper of notice of meeting। तो जनरल मीटिंग का जो नोटिस है वो एक न्यूज़पेपर में आ जाता है। तो न्यूज़पेपर में आ गया तो देन वी आर सेफ। कंपनी सेक्रेटरी शुड एंश्योर दैट नोटिस ऑफ द जनरल मीटिंग इज आल्सो इश्यूड इन द न्यूज़पेपर्स, so then we are safe if someone doesn't get a notice. Next, if it is a listed company, I also have to inform the Stock SEBI. exchange. SEBI. inform stock exchange। अभी inform stock exchange तो इसका भी एक रेगुलेशन दिया है, रेगुलेशन 29 एंड रेगुलेशन 30 ऑफ LODR, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट 2015। मतलब एक LODR करके है, वो लिस्टिंग अग्रीमेंट है। जो भी लिस्टेड कंपनीज है वो लोग को एक और लॉ फॉलो करना पड़ता है। कंपनी लॉ तो फॉलो करना ही पड़ता है, और क्या फॉलो करना पड़ता है? लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स है। वो लिस्ट होने के लिए तुमको एक LODR फॉलो करना पड़ता है। उसके अंदर रेगुलेशन 29 और 30 के अंदर बताया है कि हमको घड़ी घड़ी इन्फॉर्म करने का, आप जो भी कर रहे हो। तो क्या इन्फॉर्म करने का? बोर्ड मीटिंग कब रख रहे हो, जनरल मीटिंग कब रख रहे हो, ओके, और you have to inform them of the decisions at the meeting। समझ में आया? ये किधर दिया हुआ है? योर रेगुलेशन 2930 ऑफ LODR। तो इफ यू गो टू सी, आई हैव टेकन कंसेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आई हैव टेकन कंसेंट ऑफ द शेयर होल्डर्स, आई हैव ऑल्सो इन्फॉर्म द स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट, आई शुड इंश्योर कि भाई एक बार इशू हो गया, वो लोग ने पैसे दे दिए, हम लोग ने सिक्योरिटीज दे दी, फिर बाद में हम लोग को हमारा अपडेट द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी थोड़े नए मेंबर्स हो गए या सिक्योरिटी होल्डर्स, इसके अलग अलग रजिस्टर्स होते हैं, तो हम लोग को वो रजिस्टर अपडेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, तो रजिस्टर में नाम डाल दिया सबका। अब क्या होगा? सबको वो लोग ने पैसे दे दिए, हम लोग ने सिक्योरिटीज दी। सिक्योरिटीज कोई लिविंग थिंग है क्या? क्या फेंक सकते हो सिक्योरिटीज कहीं पे? नहीं। तो क्या देना उनको? फिजिकल चीज क्या मिलेगी? Allotment certificates.
अलॉटमेंट सर्टिफिकेट नहीं होता, क्या होता है वो? Share certificate. Share certificate. इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट्स। तो ये जो शेयर सर्टिफिकेट का भी टाइमलाइन दिया हुआ है, शेयर सर्टिफिकेट्स इशू करना पड़ेगा। कौन सा सेक्शन था ये, हम लोग ने देखा था? Subsection 4. सेक्शन 56 सबसेक्शन 4 में दिया है कि अगर जब भी तुम सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स कितने टाइम में इशू करने का, डिबेंचर्स, शेयर्स, ऑल दी सर्टिफिकेट्स हैज टू बी इशूड इन हाउ मच टाइम। नेक्स्ट इफ वी सी, तो उसमें लिखा था 2 months के अंदर फ्रॉम अलॉटमेंट, 1 month, 1 month, 6 months। रिमेंबर वी आर डन। तो इसका टाइमलाइन इंपॉर्टेंट है। एक बार मैंने सिक्योरिटीज अपडेट कर दिया, फिर शेयर्स उनको अलॉट हो गए, तो ये अलॉटमेंट की भी डिटेल्स मेरे को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो आरओसी को हम लोग इन्फॉर्म करेंगे रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, रिटर्न ऑफ allotment. Can you tell me in which form it is? PAS3. PAS 3. And in which section has this return of allotment been given? 39. 39. Section 39. Okay. कभी कभार लिस्टेड, अभी ये तो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट, बट तुमको लग रहा है सबको हम लोग ने फिजिकली इशू किया होगा। आजकल के जमाने में क्या इशू करते हैं हम लोग? फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स नहीं इशू करते हैं, क्या करते हैं? डीमैट अकाउंट में डालते हैं। तो अगर डीमैट अकाउंट में दे रहे ऑनलाइन सिक्योरिटी, सो देन वी इंटीमेट डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी क्या होता है? दे आर अ ऑर्गेनाइजेशन दैट होल्ड शेयर्स in electronic form। तो कोई बोलेगा भाई ये क्या है? तुम समझो, अगर शेयर सर्टिफिकेट्स रहेगा तो हो गया अपना कहानी खत्म। बट अगर इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स है तो तुम्हारा डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। डीमैट अकाउंट, तो वो डीमैट अकाउंट किसके साथ ओपन करते हो? तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है डिपॉजिटरी, तो उसके साथ में तुम्हारा डीमैट अकाउंट्स ओपन होते हैं। तो उनको भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि भाई हम लोग ने इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स अलॉट किए हैं। तो ये किसको इंटीमेट करना है? डिपॉजिटरी इफ इट इज ऑनलाइन शेयर्स। व्हाट इज अ डिपॉजिटरी तुमको सेबी में भी आएगा। आई एम नॉट गोइंग इन डेप्थ नाउ। समझ में आया? विद टाइम यू विल कम टू नो। जस्ट रिमेंबर, depository is related to your electronic shares, online shares. So they are the organization that hold shares in electronic form and they maintain किसको देना है, किससे लिया, किसने ट्रांसफर किया and so on। यहाँ तक समझ में आया? Mark this as super important। ये जो हम लोग ने टॉपिक किया है अभी, ये तुम्हारा कोई भी प्रोसीजर रहेगा ना, दिस आर योर कॉमन पॉइंट्स, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। कोई भी इशू ऑफ सिक्योरिटी आया, ये लिखोगे आंसर, यू विल गेट मार्क्स। तुम्हारा आराम से 1.5 साइड चलेगा एंड दीज आर प्रैक्टिकल फॉर्म्स एंड अलोंग विद द सेक्शन, सब सेक्शन, एवरीथिंग इज देयर। नाउ इन एडिशन, अब ये तो कॉमन पॉइंट्स हो गए, बट कोई कोई स्पेसिफिक टॉपिक्स भी, मतलब स्पेसिफिक चीजें भी रहेगी। लास्ट 12th में क्या होगा? यू हैव टू राइट द स्पेसिफिक प्रोविजंस आल्सो। Whenever you read these in-depth section 62, 1 EBC, उसके specific provisions रहेंगे, वो भी तुमको करना है, and then your answer is complete. Clear इतना? Now remember this, and whenever we do these issues, we will keep coming again and again to this कि देखो ये वापस repeat हुआ है। अभी एक एक करके लेते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं राइट इशू की। तो राइट इशू को 3 पार्ट में और डिवाइड कर सकते हैं, 1, 2 एंड 3। इसके अंदर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कैसे हम लोग इन्फॉर्म करेंगे? So let's see. Now when I have
right issue. Can you tell me under which section is right issue given? 60-1A. 60-1A. ओके, अब 1A का फर्दर है सब क्लॉज A, सब क्लॉज B एंड सब क्लॉज 2 एंड सब क्लॉज 3. सब क्लॉज A क्या बोल रहा है कि भाई ये जो राइट इशू देना है कैसे दोगे तुम? तो तुमको एक लेटर ऑफ ऑफर देना पड़ेगा. लेटर ऑफ ऑफर, तो सारे ही शेयर होल्डर्स के घर पे एक लेटर आएगा. लेटर में लिखा रहेगा कि एडिशनल शेयर्स आपको अलॉट कर रहे हैं. लेटर ऑफ ऑफर का इट विल बी ओपन फॉर मिनिमम, ऑफर पीरियड कितना रहेगा? मिनिमम 15 to 30 डेज रहेंगे. द ऑफर पीरियड कितने टाइम के लिए रहेगा? मिनिमम 50 डेज के लिए ओपन होगा, मैक्सिमम 30 डेज के लिए. कभी भी तुम लोग ने शॉपिंग में भी करने जाते तो बोलते हैं ना ऑफर आज लास्ट डे है, इतने दिन का ही ऑफर पीरियड है. तो यहाँ पे लेटर ऑफ ऑफर जब यहाँ पे देंगे राइट इशू के लिए, शेयर होल्डर एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं? मिनिमम 15 डेज, मैक्सिमम 30 डेज. इफ यू वांट यू कैन ईदर ट्रांसफर दिस राइट टू समवन एल्स कि मेरे को नहीं खरीदना, ये राइट मैं किसी और को दे रहा हूँ, और यू कैन गिव इट अप, renunciate your rights. थर्ड में क्या है? Whatever the board of directors can dispose of shares not taken up. Not taken up. तो अगर किसी ने भी नहीं लिए हैं तो तुम वो शेयर्स गिव अप कर सकते हो. सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा था इसके अंदर? ये 3 क्लॉज सब क्लॉजेस के अंदर लेटर ऑफ ऑफर. क्योंकि क्या होगा कि जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होगा, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होंगे, उनके घर पे एक ऑफर लेटर आएगा. I'll call it as लेटर ऑफ ऑफर. उसके अंदर सब टर्म्स एंड कंडीशन लिखे होंगे, क्या रेट रहेगा. इन दिस लेटर what all details do you think will be there inside? The price, the offer period, कब से चालू होगा, A number What of is- shares offered. the number of shares, reasons for allotment, कि क्यों ये राइट इशू कर क्यों रहे हैं. मतलब तुम पूछोगे ना पैसा क्यों रेज कर रहे हो तुम, पर्पस क्या है, दिस क्लियर. अब एक चीज करनी पड़ेगी राइट इशू के अंदर. नाउ सी पे अटेंशन, ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जब भी राइट इशू कर रहे हैं, टेल मी वन थिंग, इन अ कंपनी लाइक रिलायंस, शेयर्स ऑन एवरी डे एवरी सेकंड बेसिस ट्रांसफर होता है, मतलब बदलते रहते कि नहीं. ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, सी ने डी को बेचा, तो ऑफर दोगे किसको? समझ में आ रहा है? मतलब existing shareholders, but I'll to tell existing shareholders who are fluctuating on every second. डीमैट शेयर्स है, मैं अभी बेचा अभी खरीदा, अभी बेचा अभी खरीदा. So what happens? Reliance Industries will declare something called as a book closure or record date. मतलब क्या? They will say time please. जैसे ये क्या हमको समझ में नहीं आ रहा है, ए ने बी को बेचा, बी ने, तो ऑफर देना किसको है? तो दे विल डिक्लेयर समथिंग कॉल्ड एज टाइम प्लीज. इसका मतलब क्या है? दे विल क्लोज द बुक्स. दे विल से 25 तारीख 25 मार्च 2020 को बुक्स क्लोज होंगे. बुक्स क्या हो जाएंगे? क्लोज. दैट टाइम जिसका भी नाम 25 तारीख को दिखा वो ओनर होगा. तो 25 तारीख को ट्रांसफर सब बंद हो जाएंगे. यू विल नॉट बी एबल टू सेल ऑफ द शेयर्स. सो एनीवन हुज नेम इज मेंशन्ड ऑन दिस डेट विल बी एंटाइटल्ड टू द राइट्स. समझ में आया? सो रिलायंस इंडस्ट्रीज, any company who's ever issuing right issue will declare a book closure date. Now what is a book closure date? You can write it down or mark it important also. It is a date the
name of shareholders appearing on this date will be entitled to the corporate benefits. कॉर्पोरेट बेनिफिट्स, कॉर्पोरेट बेनिफिट्स मतलब क्या, कंपनी क्या क्या बेनिफिट दे सकता है, राइट इशू दे सकता है, बोनस इशू दे सकता है, एनी काइंड ऑफ डिविडेंड दे सकता है. तुम ही सोचो ना, डिविडेंड भी देना रहेगा तो किसको दो, एवरी बेसिस तो पे तो चेंज हो रहा है. सो दे हैव टू डिक्लेयर लाइक टाइम, प्लीज स्टॉप 1 सेकेंड, लेट ये डेट पे ये टाइम पे जो भी शेयर होल्डर रहेगा उसको वो जिसका भी नाम हमारी बुक्स में दिखा उस दिन पे उसको हम लोग कॉर्पोरेट बेनिफिट दे देंगे. समझ में आया ये? फिर राइट इशू के पॉइंट. Do they Yeah. announce it a long time? As in, like, how much time do they take before announcing something like book closure or record date? Okay, so basically the provisions, अभी यहाँ पे इतना डेप्थ में नहीं दिया है, but I'll tell you. Under section 91 of Companies Act, they talk about book closure and record date. इसके अंदर क्या बोल रहे हैं, 3 डेट्स है, 30 days, 30 days, 45 days and 7 days. ये 3 डेट्स है. समझते क्या है? ये बुक्स जब क्लोज करेंगे, इट कैन बी क्लोज्ड, योर आंसर इज 7 days वाला. I'll tell you all 3. I'll tell you. सबसे पहले the books will be closed maximum for 30 days at a time. मैक्सिमम कितने दिन के लिए बंद कर सकते हैं? 30 days at a time. और you can close maximum 45 days in a year. Max 45 days in a year. Now tell me one thing. In a year, let's say 2020, कितने दिन के लिए बुक्स बंद कर सकता हूं? Max 45. Max 45 days. एक साथ 45 days बंद रख सकता हूं? 9. No, so it is maximum 30 days at a time. अब ये 7 days तुम्हारा आंसर है. 7 days prior, okay, to the book closure date. So I have to make a public announcement. Public announcement has to be made 30 days prior, 7 days prior to the book closure date. I'll tell you one small little thing also. We'll be going off topic, but फिर भी देखना, मतलब इंटरेस्टिंग है थोड़ा नॉलेज बेस के लिए. टेल मी, ये पढ़ने के बाद द पब्लिक अनाउंसमेंट विल बी मेड 30 days prior to book closure date. तो बुक क्लोजर डेट पहले होगा या पब्लिक अनाउंसमेंट? Public announcement. तो क्या होगा, यहाँ पे बुक क्लोजर डेट है, तो जो 20 तारीख को मैंने बुक क्लोजर डेट रखा. अभी तुम लोग देखो मार्केट कैसे घूमता है. बुक क्लोजर डेट मतलब बुक क्लोजर डेट क्या होता है, 20 तारीख को जिसका भी नाम होगा उसको कॉर्पोरेट बेनिफिट्स मिलेंगे. ठीक है. अब कितने दिन पहले बता देना पड़ेगा कि बुक क्लोजर डेट 20 तारीख है? 7 दिन पहले. At least 7 days prior you will have to tell what is the book closure date. So a public announcement will have to be made. अब during this time company is closing the books, they will tell कि what is the benefit. वो बताएंगे वो लोग कि क्या बेनिफिट है, राइट इशू है, डिविडेंड है, बोनस है ये टाइम पे. अब मुझे बताओ, शेयर प्राइस इतना वॉलेटाइल हो जाएगा ड्यूरिंग दिस टाइम, राइट और रॉन्ग? Yes. शेयर प्राइस इतना वॉलेटाइल हो जाता है ये टाइम पे. मतलब सोचो यहाँ पे जैसे अनाउंसमेंट आ गया कि भाई बुक क्लोजर डेट है, 200 रुपए का शेयर प्राइस है, तुम मुझे बोलो बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा. Increase. अभी तुम अगर रहोगे तुम बेचोगे क्या अपना शेयर? No. नहीं, तो कोई भी शेयर बेचता नहीं है.
इतना आसानी से। मैं बोल रहा हूँ ठीक है यार भाई मेरे को चाहिए रिलायंस का, मैं तुझे 210 दे रहा हूँ, तो तुम बोलोगे अच्छा ठीक है कोई कोई निकल जाएंगे, कोई दूसरा रहेगा वो, और मतलब इतना आसानी, तो शेयर प्राइस बढ़ते रहेगा क्योंकि यहाँ पे बेनिफिट इन्वॉल्व है इसके अंदर, राइट। अब एकदम एंडिंग में क्या होगा, एकदम बढ़ेगा कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एंडिंग में अभी धीरे धीरे गिरना चालू हो जाएगा 210। बिकॉज क्या होगा, जैसे जैसे पास में आएगा ना, ऑलरेडी मार्केट इन्फ्लेट हो चुका है इतना ऊपर, और अभी खाली अनाउंसमेंट आ सकता है, मे बी इट कुड नॉट बी अ वेरी बिग अनाउंसमेंट, मे बी कंपनी ये बुक क्लोजर डेट पे कुछ खास डिक्लेरेशन दे ही नहीं तो सीधा मार्केट गिर जाएगा। तो क्या रहता है, वी डोंट नो व्हाट दैट अनाउंसमेंट इज, they just say we are going to close the books to tell something. Now what is that something, now it starts trading, now people think anticipation की बहुत बड़ा announcement है तो प्राइस बढ़ते रहेगा, और वन डे पे you don't want to take a risk, तो you start selling off also। 220 अच्छा हो गया, सोचो अगर मैं एक शेयर होल्डर हूँ, 200 रुपए के रेट पे मेरा भाव था, मेरे को तो बैठे बैठे 7 दिन के अंदर भाव कितना हो गया, 200 का कितना मिल रहा है अभी, 220 220 मिल रहा है, 7 दिन के अंदर भाव इतना वॉलेटाइल हो गया, तो मैं भी अनलोड ऑफलोड करना चालू हो जाऊंगा, बेचना चालू कर दूंगा, तो जैसे सेलिंग ज्यादा हो जाएगी प्राइस वापस नीचे आना चालू हो जाएगा। ये खाली शेयर प्राइस का मैं तुमको नॉर्मल फ्लक्चुएशन बता रहा हूँ। तो ये बुक क्लोजर कितने इन्वेस्टर्स रहते हैं ना, ये बुक क्लोजर रिकॉर्ड डेट में ये लोग यहाँ पे खेलते हैं। सो दिस ऑल्सो वील सी लेटर व्हेन वी डू। यहाँ तक समझ में आया राइट इशू में व्हाट इज अ बुक क्लोजर डेट? Very important, the shareholders whose name appear on this date will be entitled to the corporate benefits. Now moving forward, right issue हो गया, let's go from the module and finish it off. Now there will be some readings that you need to do, concept you will know properly. Let's see. Conditions, offer will be made by a notice, that notice is called as letter of offer. It will be open for 15 to 30 days. If you want, you can give up your shares or you can transfer it to someone. अब ये नोटिस में क्या क्या डिटेल्स लिखे होंगे वो दिया हुआ है। नोटिस तुम कैसे भेजोगे, घर पे हैंड डिलीवरी करने का कि रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, ऑनलाइन, एंड दिस हैज टू बी डन एट लीस्ट 3 days बिफोर। तो ये सब प्रोसीजरल पार्ट है विच यू कैन रीड। अब ये तुम नहीं पढ़ोगे चलेगा, ये कैंसिल कर सकते हो, all this can be cancelled. What is directly important is what I have told you as a common procedure, this part. Now let's see the procedure. हम लोग का common procedure, how strong it is. क्या लिखा है, right increase in share capital, अगर हुआ तो कौन सा फॉर्म चाहिए अपने को, SH7, notice of board meeting, call a board meeting, फिर क्या बुलाना है, जनरल मीटिंग बुलानी है स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए। कितने टाइम के लिए ऑफर ओपन होगा, 15 to 30 days। आगे देखेंगे, शेयर्स डिक्लाइंड कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट कौन से फॉर्म में होगा, PAS3 हैज टू बी फाइल्ड विद इन 30 days ऑफ अलॉटमेंट। नेक्स्ट, शेयर सर्टिफिकेट हैज टू बी गिवन एंड इंटीमेट डिपॉजिटरी, अगर ऑनलाइन रहेगा तो। समझ में आया? तो सभी प्रोसीजर कवर हो गया। प्रोसीजर इज इंपॉर्टेंट। नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट टॉपिक, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। नाउ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम क्या होता है समझते हैं। नाउ वी आर डूइंग, कौन सा सेक्शन है पहली बार, सेक्शन 62(1) बी, इसका नाम क्या है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस। नाउ कंपनी में एसेट साइड पे सब अलग अलग, यू विल सी लैंड एंड बिल्डिंग, यू विल सी सॉफ्टवेयर, यू विल सी टेक्नोलॉजी, यू विल सी फर्नीचर्स, फिक्सचर्स,
कैश इन हैंड, बैंक, एसेट साइड पे दिखेगा। बट कभी भी तुम देखोगे ना, एक कंपनी का सबसे बड़ा एसेट क्या होता है? सबसे बड़ा एसेट क्या होता है? दे आर एम्प्लॉइज। Employees. इनके जो एम्प्लॉइज होते हैं, दे आर द बैकबोन, दे आर द एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर वो चले गए तुम्हारे की एम्प्लॉइज, तो लैंड एंड बिल्डिंग, कैश इन हैंड का कुछ नहीं कर सकते। तो एम्प्लॉई आर द की पीपल। अब क्या होता है, एम्प्लॉइज ऑलवेज लुक फॉर हायर सैलरी, better options, and they're always looking to exit or compete. So what I do, I use a technique to retain employees. Retain employees. तो कैसे retain करने का, मेरे को अलग अलग ऑप्शन बता सकते हो? एम्प्लॉइज को रिटेन कैसे करूं? by giving them stock options. By giving them stock options. सीधा काम की बात। Now, very good. Now, what are these At a stock lower options? salary. समझते हैं। मैं उनको शेयर्स नहीं दे रहा हूं, मैं उनको क्या दे रहा हूं? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस। तो एम्प्लॉय बोलेगा ये क्या होता है? मैं उनको बोल रहा हूं कि भाई आपको मैं ग्रांट कर रहा हूं, आई एम ग्रांटिंग यू सम ऑप्शंस। व्हाई इट इज कॉल्ड एज ऑप्शन? यू कैन चूज इफ यू वांट। सो लेट्स से पार्थ इज माय एम्प्लॉय, ही इज अ टैलेंटेड एम्प्लॉय। टेल मी वन थिंग, ये जो ऑप्शन है सारे एम्प्लॉयज को देने का, एक एम्प्लॉय ने मेरा लॉस करा है 3-4 बार, उसको मैं ये ऑप्शन दूंगा, विल आई वांट टू रिटेन ऑल एम्प्लॉयज? No. तो इट इज गिवन टू की एम्प्लॉयज। सो इसके लिए क्या करते हैं वो लोग, जनरली एक कमिटी बनाते हैं, कॉम्पेंसेशन कमिटी। कॉम्पेंसेशन कमिटी कंपनी के अंदर बनाते हैं। वो कॉम्पेंसेशन कमिटी देखती है कि टैलेंटेड एम्प्लॉयज कौन है, शॉर्टलिस्ट करते हैं इनका नाम। उनका नाम हम लोग रखेंगे एलिजिबल एम्प्लॉयज। तो सब खुश नहीं होने का, इंटर्न भी खुश हो गया, ताली बजा रहे हैं। हम लोग बोलेंगे भाई ये एलिजिबल एम्प्लॉयज ही है, उन्हीं दे कैन ऑप्ट। तो वो कॉम्पेंसेशन कमिटी ढूंढेगी। दूसरा, तो सोचो हम लोग ने आइडेंटिफाई किया दैट पार्थ इज अ टैलेंटेड एम्प्लॉय। अभी वी ग्रांटेड हिम द ऑप्शन इन 2010 या 2020 में उसको ऑप्शन दिया कि आपको हम लोग 1 लाख इक्विटी शेयर्स अलॉट कर रहे हैं। ओके, सो पार्थ बिकेम एक्सट्रीमली हैप्पी, बट आई टेल हिम देयर इज अ कैच। ये जो ग्रांटिंग ऑफ ऑप्शन किया है, हम लोग तुमको 1 लाख इक्विटी शेयर्स दिए, इसको आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा, ये लॉक्ड है। देयर इज अ लॉक इन पीरियड, और लॉक इन पीरियड लॉ के हिसाब से कितना है? मिनिमम 1 year. 1 year. मिनिमम 1 साल तुमको कंपनी के साथ में रहना पड़ेगा। सो कैन पार्थ सेल द शेयर्स टुडे? No. 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 Will he be entitled to dividend, voting rights, anything? Yes. Vote. You are not an employee, मतलब you are not an shareholder now. तुमको ऑप्शंस मिले हुए हैं, स्टॉक्स मिले हुए हैं, अभी तक तुमको कोई इक्विटी राइट्स का वो नहीं मिलने वाला है। तुमने 1 साल थोड़ी कंप्लीट किया कि तुमको वोटिंग राइट मिल जाएगा। तुमको लॉक इन पीरियड करना पड़ेगा। तो ग्रांट है, मैं बोल रहा हूं तुम्हारा वेस्टिंग। वेस्टिंग का मतलब होता है वेटिंग पीरियड। कितना है वेटिंग पीरियड? 1 year. 1 ईयर कंपनी, 1 ईयर कंपनी में काम करो, फिर बाद में तुमको ये सारे हम लोग राइट्स देंगे। सो फ्रॉम ईयर टू ईयर ही इज नॉट अ शेयर होल्डर, ही बिकम्स अ शेयर होल्डर ओनली आफ्टर द लॉक इन। समझ में आया ये? तो इससे क्या किया मैंने, विल पार्थ वांट टू लीव इन बिटवीन? 10वें मंथ में छोड़ के चले जाएगा कंपनी? No. नो, बिकॉज हिल से यार 2 महीना और काम कर लेता हूँ तो मेरे
इसको ये मेरे इक्विटी शेयर्स लेके निकलूंगा और जैसे एक हो गया मैं नए इसको अलॉट कर दूंगा. तो विद दिस वे आई एम इंश्योरिंग, आई नो कि एक उसको ऑप्शन दिया है, वो एक साल कैसे भी करके बैठेगा वो. अब ये जो कमिटी है, committee will not only sit, they will also supervise the options. मतलब ये पूरा supervise the entire scheme, employee stock option scheme है ना, तो ये स्कीम को सुपरवाइज करेगी कि क्या है, बिकॉज अलग अलग सिनेरियोज हो सकते हैं. ड्यूरिंग दिस 1 year there can be various events. It is possible that there might be death, there might be resignation, there might be disablement, there might be removal, right or wrong. ऐसे अलग अलग इंसिडेंट्स हो सकते हैं. So during this time what will happen will be again determined by the compensation committee. So they will frame a policy, they frame policy कि ये सारे केसेस में क्या होगा. अगर बेचारा मेहनत किया है and he died in the company, तो we should give it to his legal representatives. रिजाइन कर दिया उनने बीच में तो उनको कोई भी बेनिफिट्स नहीं मिलने चाहिए एंड सो ऑन. समझ में आया ये? नाउ इसका भी सेम चीज है. व्हाट विल बी द प्रोसेस? स्पेशल रेजोल्यूशन, इसमें भी तुम्हारा बोर्ड रेजोल्यूशन, SH, everything. Now let's see, let's go to it. Now first thing what they are saying, ये options के अंदर can it be given to the directors of the company? Because directors are also employees at the end of the day. Yes or no? What do you- Yes. Yes, so even directors can participate, even employees can participate, but the promoters cannot participate. And independent directors. हाँ, and directors में भी बोला है कि independent directors cannot participate. वो क्या है देखेंगे हम लोग, independent directors. और एक और है directors holding more than 10% shares, they also can't participate. तो समझते क्या सीन है? So section 62(1)(b) talks about issue of shares to employees. Rule 12 भी याद रखना है अपने को, Rule 12 of Company Share Capital and Rules 2014. इसके अंदर क्या बोल रहे हैं? लिस्टेड कंपनीज के लिए एक अलग से तुमने इसमें देखा होगा, तुम्हारे सेबी में लिस्टेड कंपनीज के लिए भी स्पेशल गाइडलाइंस है. नाउ you have to pass which resolution? Special resolution. But in case of private companies, ordinary resolution is required. समझ में आया ये भी मार्क कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, जब भी बोल रहे कि एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन, तो एम्प्लॉइज को दे सकते हैं. तो हु इज एन एम्प्लॉई? सो एनी एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी, कंपनी की होल्डिंग को भी दे सकते हैं, होल्डिंग का एम्प्लॉई या सब्सिडरी का एम्प्लॉई, वेदर इट बी इन इंडिया और अब्रॉड. So options can be given to the company. It can also be given to the director of the company. It can also be given to an employee of the subsidiary of the company or of the holding company, but does not include a promoter, any person in the promoter group, or a director who holds more than 10% shares of the company. So they are not allowed. So tell me one thing, can Reliance Industry give options to a employee who is working under Jio? Reliance Jio. ये Yes. होल्डिंग कंपनी है और ये सब्सिडरी है, तो यस चल जाएगा. होल्डिंग सब्सिडरी में भी कर सकते हैं, अपनी ग्रुप कंपनी है तो किसको भी तुम रिटेन कर सकते हो ऑप्शन देके. एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में तुम मुझे बताओ, जब ये एम्प्लॉय को बैठ के क्या क्या बताओगे, क्या क्या डिस्क्लोजर्स दोगे तुम, तो ये सब डिटेल्स होगा. कितना ग्रांट कर रहे हैं, किसको ग्रांट कर रहे हैं, अप्रेजल प्रोसेस कैसे होगा, वोटिंग राइट्स कब मिलेगी, कब तक रुकना पड़ेगा, फॉर्मूला क्या होगा फॉर अराइविंग एंड सो ऑन.
नेक्स्ट, फ्री प्राइसिंग। अगर 100 रुपए का शेयर है तो मैं एम्प्लॉय को सस्ते में दे सकता हूँ, राइट और रॉन्ग? Yes. जैसे मैं Yes. राइट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को डिस्काउंट में दे सकता हूँ, एम्प्लॉयज को भी सस्ते में दे सकता हूँ। कितना सस्ते में दे सकता हूँ? तो यहाँ पे क्या लिखा है? योर फ्री प्राइसिंग, जितना चाहिए दो। One So we may be it should getting. just be in conformity with the accounting standards. So I am freely allowed to price it. Next, you can even give it to the holding subsidiary companies, employees of them. Can you vary the terms of the stock options? Not if it is violating any right of the employee. क्या है देखो लॉजिक, बेनिफिशियल वेरिएशन चलेगा, but the variation should not be prejudicial to the interest of the option holders. मतलब it cannot be prejudicial, मतलब detrimental और harmful. तो मैं राइट्स कम कर सकता हूं तुम्हारे हिसाब से? No. नहीं. कम नहीं कर सकते, बढ़ाना है तो वो वेरिएशन चल जाएगा। मिनिमम वेटिंग पीरियड कितना है कंपनी में? मिनिमम कितना काम करना पड़ेगा? 1 year. मिनिमम 1 year बिटवीन ग्रांट ऑफ ऑप्शन एंड वेस्टिंग ऑफ ऑप्शन। तो मैं तुमको आज ऑप्शन ग्रांट कर रहा हूं, वो वेस्ट 1 साल के बाद होगा, तो तुमको 1 साल कंपनी के साथ में काम करना पड़ेगा। अब यू हैव अ फ्रीडम टू स्पेसिफाई द लॉक इन पीरियड। तो मैं 2 साल रखूं, 3 साल रखूं, मिनिमम 1 year, मैक्सिमम लिमिट नहीं दिया है। सो नो राइट टू डिविडेंड ऑन वोटिंग राइट्स टिल द ऑप्शन इज एक्सरसाइज्ड। तो जब तक कि वो सब फाइनलाइज नहीं होता है, तुमको मिलता नहीं है, यू डोंट हैव एनी राइट्स ओवर, बिकॉज क्या पता कि तुम 1 साल काम करो या नहीं करो। फोरफीचर रिफंड, तो अगर एनी अमाउंट उसने पे किया है और उसने ऑप्शन फिर बीच में छोड़ दिया कंपनी के, तो वो अमाउंट क्या हो सकता है? फोरफिट हो सकता है। स्टार्टिंग में हमने तुमको दिया राइट और तुमने थोड़े पेमेंट किए होंगे, अब तुमने कंपनी बीच में छोड़ दिया तो फोरफिट भी कर सकते हो पैसा। ओके, so these are conditions. Can the employee transfer it to any other person? No. So it is not transferable. क्या ये एम्प्लॉई वो शेयर्स को गिरवी रख सकता है जो अभी तक उसके नाम पे नहीं हुआ है? No. So it shall not be pledged also, and no other employee can be entitled to exercise the option. What if there is a death, disablement, resignation? तो ये सब क्या होगा? पहले से ही डिसाइड हो जाएगा। कॉम्पेंसेशन कमेटी इसका टर्म्स एंड कंडीशंस बनाएंगे स्कीम के अंदर। जनरली टेल मी वन थिंग, अगर तुम्हारे हिसाब से वो बंदा मेहनत करते करते मर गया या he became disabled, so should we not give him or we should give him? We should give him. We should give him। तो बोल रहे हैं कि it shall vest to the legal heirs, अगर मर गया तो, और अगर इनकैपेसिटी हो गया तो उस दिन पे उसको मिल जाना चाहिए। इन रेजिग्नेशन मिलेगा उसको? No. रेजिग्नेशन में ऑल हिज ऑप्शंस विल एक्सपायर, हिज राइट्स विल एक्सपायर। यही सेम चीज किसको दिया, क्या दिया, बोर्ड रिपोर्ट के अंदर डिस्क्लोज होना चाहिए, जो हर साल आता है। रजिस्टर में भी नाम मेंटेन करना चाहिए। रजिस्टर कौन से फॉर्म में होगा? SH6. SH6 लिस्टेड कंपनीज के लिए सेबी रूल्स बनाएगा। नाउ कमिंग टू द प्रोसीजर विच आई टोल्ड यू, जो हम लोग ने कॉमन किया था। हम लोग ने जो प्रोसीजर किया वो सब जगह डाल सकते हो। दे मस्ट हैव नॉट गिवन, यू कैन ऑलवेज डू इट। कन्वीन बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग भी बुला लो, बट अगर प्राइवेट कंपनी है तो उनको स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं पास करना है, दे कैन पास ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाएगा। अब मैंने देखो सेक्शंस भी दिए थे, सब सेक्शंस भी दिए थे, वो लोग ने नहीं दिया है। अपने लिख सकते थे तो अपना आंसर विल बी बेटर एज कंपेयर टू अदर्स। स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए कौन सा फॉर्म चाहिए? MGT 14. MGT 14, ठीक है। प्राइस में अभी थोड़े स्पेसिफिक प्रोविजंस है, तुम फ्रीली यू कैन डिटरमाइन द प्राइस।
अप्रूवल लेना पड़ेगा शेयर होल्डर्स का, मिनिमम लॉक इन कितना है, 1 ईयर, अमाउंट जो तुमने पे किया था एम्प्लॉय को, अगर उसने छोड़ दिया, ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया, तो वो अमाउंट क्या हो जाएगा, फोरफिट। इसका मतलब क्या है, मैं पार्थ को बोल रहा हूं कि पार्थ मैं तुमको 1 लाख इक्विटी शेयर्स दे रहा हूं, तुमको कंपनी में कितने साल काम करना पड़ेगा मिनिमम, 1 year. मिनिमम 1 ईयर। अब मार्केट प्राइस उस शेयर का 300 रुपए है, बट मैं तुमको कितने में अलॉट कर रहा हूं, कितने में अलॉट करना चाहिए पार्थ को, क्या डिस्काउंट कितना देना चाहिए, ₹200 में दे रहा हूं, ठीक है। अब ये 200 पार जब एक, मैं उसको बोल रहा हूं जरूरी नहीं कि फ्री में ही दूं, थोड़ा पैसा ले भी सकता हूं मैं, तो 200 रुपए में बोल दूंगा कि भाई एक काम करो, आप अपफ्रंट पे कर दो, या तुम कम से कम 50% अपफ्रंट पे कर दो। तो इससे और मैं श्योर हो जाऊंगा कि पार्थ कंपनी में अटका हुआ रहेगा, बिकॉज व्हाट विल हैपन दैट नाउ आई नो पार्थ विल बी इन द कंपनी फॉर अ लॉन्गर टाइम, बिकॉज उसका पैसा भी अटका है, और अगर उसने ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया तो वो 50% क्या हो जाएगा उसका, Forfeit. Forfeit. फॉरफिटेड हो जाएगा। ओके, और अगर और रिफंड कब होगा, जब उसकी कोई गलती नहीं है और वो खत्म हो गया। हाँ, क्या, what if the market price decreases? market price decreases, very good. So this is a very good point that employee is bearing that risk. मैं इसके लिए तो एम्प्लॉय को बोल रहा हूँ कि तू मेहनत करना, एम्प्लॉय को मैं बना रहा हूँ अच्छे खासे, डायरेक्टर्स को जान लगा दो, तुम्हारी कंपनी 1000 हो गया तो अभी मार्केट 300 है, मे बी मार्केट प्राइस 1000 हो सकता है, तो तुमको तो फायदा हो गया। बट व्हाट इफ यू आर टेलिंग मी द प्राइस टर्न्स आउट टू बी 100, सो टू बैड, डोंट एक्सरसाइज द ऑप्शन, लेट गो ऑफ द ऑप्शन। और वैसे भी 1 साल तुम काम क्या किए फिर। So this way, what is the company doing? Company, this is a technique. It's a business. Everybody, after all, is not sitting here to please the employees. We are doing business out here. So if we grow, company grows, employee grows, right? So employee will think that boss, at least I have this benefit with me, that अगर मैं अच्छा करूं कंपनी के अंदर और कंपनी का मार्केट प्राइस ऊपर जाए तो मुझे बहुत फायदा होगा, बट अगर नहीं गया तो आई एम ऑल्सो बेरिंग द रिस्क इन द कंपनी। समझ में आ रहा है? Yes. तो ऑब्वियसली ही माइट फेस अ लॉस ऑल्सो इन द एम्प्लॉय if upfront money is taken by him. So if Also, the employee is some, too, if the employee doesn't believe that there is a good scope in the company, he should not go for the options then. Yeah. yeah, and also the fact that, for example, the employee exercises that option, and after that, you said that there is a lock-in period of even holding the shares, right? That is for 1 year. Yeah. So that does that mean that he cannot sell the shares or he cannot resign from the company? Like he's still free to resign and hold the stocks of the company. Like what does it exactly mean, that lock-in period? That lock-in period में क्या होता है, कंपनी पहले एक स्कीम बनाती है, that scheme is nothing the terms and conditions, the detailed terms and conditions, so the employee also understand now what is he getting into, Right. and the company also enters. So in this, if within the lock-in period he resigns, he loses all his rights, so वो उसके हुए ही नहीं। It is just like telling तुम 1 साल काम करो तो दूंगा मैं नहीं सर, मैं उसके shares, बाद की बात कर रही हूँ, शेयर्स लेने के बाद। and suppose- then it is like any other equity share, then he can exit, Right, he can okay. take it, he worked hard na to get those shares. Yeah. So then it becomes ordinary, then there is no lock-in. तो आफ्टर द लॉक इन पीरियड उसके नाम पे हो गया, फिर तो बेचेगा ना वो, 1 साल काम कराने के बाद में, तो मेरा शेयर है फिर, देन आई गेट प्रॉपर शेयर्स। Okay, sir. ओके,
So these are the terms and conditions. Then coming further, coming to the next part, that is the issue on shares on preferential basis. Now we are seeing issue of shares on preferential basis. It is also called as preferential allotment. इसका एक दूसरा कॉन्सेप्ट है which you can also call it as privately किसी को दे देना, private placement. Now preferential allotment कौन से सेक्शन में दिया हुआ है? 62(1)(c). 62(1)(c). And private placement is also the same thing, but इसके भी थोड़े conditions दिए हैं. That is given under section 42. So when you are doing preferential allotment, the factors that are given in section 42 also need to be complied. अब समझते इसका मतलब क्या है? तो do I have to comply any one of them or both of them? Both. So both has to be complied. What is given in section 42 and in section 62(1)(c. पहली बात इसका मतलब क्या होता है? Meaning it is allotting securities to selected group of persons. Company knows in advance to whom they are allotting. Company knows in advance to whom they are giving the offer. Allotting. Okay. So we come to know that we are giving it to Facebook, we are giving it to so and so and so on. Now, इसके क्या points है? Same as before, as we have seen the common points, but इसके specific provisions भी रहता है. Now, few things. Government ने बोला है कि maximum number of allottees. Tell me one thing, प्राइवेट प्लेसमेंट है तो 10 लाख लोग को प्राइवेटली प्लेस कर सकता हूँ? 10 लाख लोग? No. गवर्नमेंट इज सेइंग प्राइवेट प्लेसमेंट है मतलब कम लोग को जाना चाहिए ना, इतने सारे लोग को नहीं जाना चाहिए. व्हाट इज दैट कम? तुम्हारे पास में मॉड्यूल भी है. मैक्सिमम नंबर ऑफ अलॉटीज कितने? 200. आंसर इज 200. ओके, सो वील सी दे आर सेइंग 50 at a time and 200 in a year. And while calculating this, QIB should be excluded. QIB are excluded. मतलब QIBs जो हैं qualified institutional buyers, ये लोग का काउंटिंग में नहीं आना चाहिए. तो आई कैन अलॉट टू देम 200 300, वो लोग को कितना भी अलॉट कर सकता हूँ. They are not going to be counted under this number 200. For example, मैंने 50 लोग को दिया तो प्राइवेट प्लेसमेंट हुआ कि नहीं? अब उसमें से मेरे को एक और किसी को QIB को भी अलॉट करना है तो कर सकते हैं, इनका कैलकुलेशन में नहीं आएगा. पहली बात, QIB क्या होता है? दे आर नो वन बट बायर्स. बट तुम भी एक बायर हो. टेल मी, तुम यहाँ पे आओगे, दीज आर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स. आर यू अ इंस्टीट्यूशन? No. नो. तो तुम्हारा काउंटिंग नहीं होगा. ये कौन कौन हो सकता है? म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, तुम्हारा कोई कंपनी हो सकती है जो इंस्टीट्यूशन है. इट्स लाइक अ आर्टिफिशियल पर्सन. तो QIBs, they will be there. Now let's see what are the conditions they have given. कौन सा रेजोल्यूशन हम लोग ने बोला था? Special. स्पेशल रेजोल्यूशन. अब वेरी वेरी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एडिशनल कंडीशन में you have to get a valuation report. वैल्यूएशन रिपोर्ट निकालना पड़ेगा यहाँ पे. अब ये वैल्यूएशन रिपोर्ट क्या है कि तुम कितने भाव से दे रहे हो. डोंट यू थिंक अगर मार्केट प्राइस ₹200 है, आई एम गोइंग टू प्राइवेटली प्लेस टू सर्टेन इन्वेस्टर्स, तो क्या रेट से दिया होगा? राइट और रॉन्ग?
तो वो पहले तुमको वैल्यूएशन निकालना पड़ेगा, मतलब शेयर का भाव कितना है, शेयर वैल्यू कितना है, वैल्यूएशन रिपोर्ट, फिर गवर्नमेंट ने उसका प्राइसिंग भी दिया है। इसमें फ्रीली प्राइसिंग नहीं कर सकते प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में, मतलब बहुत ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते। तो गवर्नमेंट के रूल देखते क्या है। फर्स्ट, प्रेफरेंशियल ऑफर, it is given to a selected group of persons. Preferential allotment, it should be authorized by the articles, special resolution, explanatory statement होना चाहिए। explanatory statement में जो भी information डालना है डाल सकते हो। you have to, अब ये एक important point है, एक बार हम लोग ने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया, कितने टाइम में कंप्लीट हो जाना चाहिए? 12 months. So it should be completed within 12 months. तो ये ऐसे थोड़े स्पेसिफिक न्यू प्रोविजंस होंगे तो वो हाईलाइट कर सकते हो, जो तुम तुम्हारे उससे एक्स्ट्रा लिख सकते हो कॉमन पॉइंट से। देन द प्राइस ऑफ द शेयर्स शैल बी डिटरमाइंड ऑन बेसिस ऑफ द वैल्यूएशन रिपोर्ट। तो एक अलग से रिपोर्ट निकालना पड़ेगा कि शेयर प्राइस कितना है, तो एक अलग से वैल्यूअर्स होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। फिर ये सब पॉइंट्स रीड कर सकते हो। देन कम इन टू दिस प्रोसीजर। नाउ आई टोल्ड यू ऑल, हम लोग ने प्रोसीजर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। देखना कॉमन पॉइंट से कितने प्रोसीजर्स हिट होंगे। आर्टिकल्स, स्पेशल रेजोल्यूशन, नोटिस। ओके, यू ऑल्सो यहाँ पे देखो रिक्वायर्ड टू कंप्लाई 42 सेक्शन ऑल्सो भी देखेंगे। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, MGT 14, अलॉटमेंट 12 महीने में हो जाना चाहिए। इफ इट इज फॉर अदर देन कैश देन अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर शुड बी अपॉइंटेड। ये भी देखो, कभी कभार क्या होता है, हम लोग प्राइवेटली प्लेस करते हैं सिक्योरिटीज हमारे, और इन रिटर्न वो लोग मनी भी देंगे इन्वेस्टर्स, या मनी इज वर्थ या कुछ और दे सकते हैं वो लोग। समझ में आया? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज प्रेफरेंशियल प्लेसमेंट कर सकते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हैं कोई इन्वेस्टर्स को, और इन्वेस्टर्स इन रिटर्न या तो पैसे दें या कंसिडरेशन अदर देन कैश। समझ में आया? तो सिक्योरिटी जब रिलायंस दे रही है, इन रिटर्न उनको क्या मिल रहा है? या तो कैश मिल सकता है, या कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मिल सकती है, या सामने सामने कोई शेयर्स मिल सकते हैं अदर देन कैश। तो ये जो भी है वो वैल्यूअर बताएगा। All of this you can read. Then come into private placement. Mark this also very important. Same points लिखे होंगे. I'll tell you all additional points इसमें क्या है. Private placement is very very important. अब प्राइवेटली प्लेस करेंगे तो वापस टेल मी वन थिंग, क्या तुम फोन करके बताओगे कि लेटर लिख के दोगे उनको? लेटर लिख के। तो वापस सेम चीज इसमें एक एन ऑफर विल बी गिवन टू अ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्संस। Offer cum application, called as an offer cum application. Make a private placement. It should be in such form, it will be mentioned, उनके नाम mentioned होंगे, maximum number of persons, टिक मारो इसमें क्या है, to whom it will, the identified persons कौन है, shall not exceed 50. Okay, अब जो 50 कैलकुलेट कर रहे, वी शुड एक्सक्लूड 2 पीपल हु QIBs को भी एक्सक्लूड करना है और एम्प्लॉइज को भी एक्सक्लूड करना है। सो प्राइवेटली प्लेस्ड में QIBs को करूँ तो 50 हिट होगा क्या? 50 नंबर काउंट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आई कैन इशू टू 50 पर्सन्स एंड 5 एम्प्लॉइज और QIBs। कैन आई डू दिस? क्या मेरा प्राइवेट प्लेसमेंट हिट होगा? आंसर इज यस, बिकॉज ये कर सकते हैं, क्योंकि क्या है, ये दोनों का काउंटिंग ही नहीं होगा, बिकॉज ये बोल रहे हैं 50 काउंट करते वक्त एक्सक्लूड एम्प्लॉइज एंड QIBs। तो इसे ठीक है। QIBs क्या है वो देखेंगे हम लोग, डिफाइन किया हुआ है सेबी ने। अप्लाई टू प्राइवेट प्लेसमेंट, सो दे विल अप्लाई एंड दे विल मेक द पेमेंट इधर इन चेक, मतलब इन्वेस्टर्स चेक में पेमेंट देंगे। You have to file a return of allotment, देखेंगे। अब ये भी देखो important, टाइम लिमिट टू अलॉटमेंट
कितने दिन में अलॉटमेंट करना चाहिए? सेक्शन 42 बोल रहा है कंपनी मेकिंग एन ऑफर अंडर दिस सेक्शन शैल अलॉट इट्स सिक्योरिटीज विद इन 60 days of receipt of application money. This money should be kept in a separate bank account. उनका नाम मेंशन होना चाहिए किसको दे रहे हैं. Can the company issue public advertisements? No. No, देखो ये क्या है, पब्लिक इशू नहीं है तो चुपचाप सब कुछ क्वाइट में होना चाहिए, सब कुछ सीक्रेट में होना चाहिए. शुड नॉट बी मेड एनी पब्लिक एडवर्टाइजमेंट्स. रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट कौन सा फॉर्म रहेगा? PS3. PS3. A return of allotment needs to be filed. Penalty. Special resolution लेना पड़ेगा. Maximum number of persons to whom offer should be made. तो ये भी मार्क कर सकते हैं important. Shall not be made to more than 200 persons in a year. And while calculating the limit of 200 and 50 at a time, you should exclude QIBs and employees who are being offered. कम ऑफर लेटर रहेगा. ऑफर लेटर कौन से फॉर्म नंबर में दिया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. PS4. PS4. और रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा किस किस को दिया प्राइवेट प्लेसमेंट में, कौन से फॉर्मेट में? PS5. ओके. रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट विल बी इन PS3. अब वेरी इंटरेस्टिंग, इफ यू मस्ट हैव रियलाइज्ड, आई डोंट नो, हमारे जो फॉर्म्स है ना PS वाले, टोटल 5 फॉर्म्स होते हैं. अब मुझे बताओ तुमको कौन सा पता है PS 1 2 3 4 5 में? One is for prospectus. ये रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट इधर आएगा PS3. PS4 में क्या था? लेटर ऑफ ऑफर फॉर प्राइवेट प्लेसमेंट. सबसेक्शन 5 क्या है? रजिस्टर फॉर प्राइवेट प्लेसमेंट. देखो PS5 इज फॉर रजिस्टर और रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन. PS4 क्या है? एप्लीकेशन लेटर. हम लोग ने PS1 भी देखा था, जो क्या है? एनीवन रिमेंबर्स? कौन सा? ये किसमें आता है? इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, शेल्फ प्रोस्पेक्टस. शेल प्रोस्पेक्टस. आई डोंट नो वेदर वी हैव डन इट, बुक में है या नहीं, बट ये PS1. PS2 क्या है? अभी तक आया नहीं है, बट इट इज जब भी तुम लोग वेरिएशन करते हो, वेरिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. So PS2 is information. व्हाट इज PS2? Information memorandum. Okay. So PS2 is information memorandum for shelf prospectus, and PS1 is your variation of terms जो अभी तक आया नहीं है, terms and condition. समझ में आया? तो ये तुम्हारे PS 1 2 3 4 5 you can mark it as important. काफी बार तुम कोट कर पाओगे ये. All these 3 are related to private placement. और PS3 एक जनरल फॉर्म है, जब भी इशू करते हैं ये फाइल करना पड़ता है. मूविंग अहेड, कम इनटू बोनस शेयर्स. नाउ फटाफट होगा. वी हैव फिनिश्ड सेक्शन 62. सेक्शन 62 के बाद में कौन सा आएगा? सेक्शन 63 which is called as your bonus shares. Now bonus shares के लिए कितना पैसा देना पड़ता है? अब देखो एक मीनिंग ऑफ बोनस शेयर्स. व्हाट डू यू मीन बाय बोनस शेयर्स? अब देखना ज्यादातर लोग ये मिस्टेक करेंगे. तुम्हारे हिसाब से बोनस शेयर्स क्या होता है? डेफिनेशन? Benefit given to the employees. Free shares. फ्री शेयर्स. तो आंसर इज इट इज नॉट कॉल्ड एज फ्री शेयर्स, जो हम लोग कॉमनली अंडरस्टैंड करते हैं, बट इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है?
capitalization of reserves. Capitalization of reserves. कोई बोलेगा ये क्या होता है? Capitalizing of profit. देखो अभी क्या होता है, शेयर होल्डर्स ने कुछ भी पे किया था, यहाँ पे सोचो तुम्हारा शेयर कैपिटल है, ये साइड पे लायबिलिटीज आती है और यहाँ पे ये आता है एसेट साइड. अब शेयर कैपिटल सिंस दे हैव इशूड, और यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ रिजर्व्स होते हैं, रिजर्व्स में पैसा है. नाउ मुझे बताओ शेयर्स मिल रहे वो लोग को, बट क्या शेयर होल्डर्स ने कुछ भी पैसा दिया है? No. नहीं, कुछ भी पैसा दिया नहीं है, बट कहीं से तो आना चाहिए ना, वो कोई तो देना चाहिए. तो वो क्या करते हैं, कंपनी खुद के रिजर्व्स को कैपिटलाइज करके कैपिटल में डाल देते हैं. मतलब कौन भर रहा है पैसा? हु इज गिविंग द मनी? कंपनी इज ओनली पेइंग. तो कंपनी इज यूटिलाइजिंग इट्स रिजर्व्स and then they are paying shares, bonus shares to you. So free आता है, but someone ends up paying for it. That's how you get those free shares. You don't pay it. Company debits its reserves and then transfers it into share capital amount. समझ में आया ये? अब सेक्शन 62 के अंदर 3 सबसेक्शंस है. सबसेक्शन 1, 2 और 3. बहुत ही सिंपल है और खत्म हो जाएगा. इसका भी प्रोसीजर सेम है. एनी गेसेस कौन सा रेजोल्यूशन चाहिए? स्पेशल रेजोल्यूशन. कोई भी इशू आएगा स्पेशल रेजोल्यूशन. और मेरा कॉमन फॉर्मेट हमेशा लिख सकते हो, इट इज 100% करेक्ट. ठीक है, विद द सबसेक्शन. तो यहाँ पे देखते हैं बोनस शेयर्स के क्या फायदे होते हैं. फुली पेड बोनस शेयर्स इशू कर सकते हैं. सी, issue of bonus shares is capitalization of the undistributed profit. Now let's see. Sources, section 63, subsection 1, subsection 2 and subsection 3. Okay, तो subsection 1 बोल रहा है कि sources, second one conditions. तो ये तुम्हारा है sources, ये है कंडीशंस, और यहाँ पे है रिस्ट्रिक्शंस. तो समझते क्या सीन है? बोनस शेयर्स का पैसा कहाँ से निकालोगे? पब्लिक के पास से तो नहीं लेते, तो सोर्सेज ऑफ फंड्स कहाँ से आएगा? तो वो लोग बोल रहे हैं या तो फ्री रिजर्व यूज करो, या फिर अगर तुमको याद है हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में से भी यूज कर सकते हो बोनस शेयर्स, और यू कैन यूज फ्रॉम रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट. ये भी एक रिजर्व है जो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट है. ये तीनों चीज यू कैन यूज इट टू गिव bonus shares. So there are no free lunches. Someone ends up paying for it. So either the reserves are debited, capital redemption reserve or free reserves, or if you remember your security premium account. Anyone remember security premium account का section कौन सा था? 52. सेक्शन रिमेंबर 52 किया था, 53 किया था, 54 किया था, 55 और 56. 52 था इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, 53 था इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, और डिस्काउंट का एक टाइप था विच इज कॉल्ड एज स्वेट इक्विटी. 55 वाज प्रेफरेंस शेयर्स एंड 56 वाज शेयर सर्टिफिकेट कितने में इशू करना है. सब सेक्शन 4 किया था हम लोग ने, शेयर सर्टिफिकेट्स का टाइम लिमिट. तो ये वाला कौन सा है तुम्हारा? प्रीमियम, शेयर प्रीमियम. ओके, कंडीशंस फॉर इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स. आर्टिकल्स में मेंशन होना चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ऑथराइज करना चाहिए, कंपनी ने कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए, एंड पार्टली पेड शेयर्स शुड फर्स्ट बी फुल्ली पेड. तो जिसने भी थोड़ा बहुत पैसा दिया है उनको इशू करने से पहले पूरा पैसा मंगा लेने का, फिर देने का. ओके, एंड लास्ट में बोनस शेयर शुड नॉट बी गिवन इन ल्यू ऑफ डिविडेंड. तो लेट्स सी व्हाट इज द रिस्ट्रिक्शन. नॉट इन ल्यू ऑफ डिविडेंड.
मतलब क्या? In lieu of मतलब क्या? Have you heard of this word in lieu of? Instead of dividend. Instead of. Instead of. Very good. Instead of. इसका मतलब क्या होता है? अगर मैंने बोला कि मैं डिविडेंड दूंगा तो फिर क्या देना चाहिए? Dividend. I cannot promise you dividend and then I give you bonus share. So you have to abide by your promise. You cannot say कि dividend दे रहा था मैं, अभी instead of dividend I give you bonus shares. Tell me one thing, if I have promised you dividend, so I have to give you dividend then. Can I instead of dividend give you bonus shares? No. No. तो यही प्रोविजन बोल रहा है सबसेक्शन 3 रिस्ट्रिक्शन, डिविडेंड के बदले में ऐसा नहीं दे सकते. अब खाली एक छोटा सा अंडरस्टैंडिंग, ये तुम्हारे नॉलेज के लिए, खाली कंपनी लॉ का थोड़ा इंप्रूव करने के लिए. डिविडेंड जो होता है दो टाइप के हो सकते हैं. कैश डिविडेंड होता है और एक होता है स्टॉक डिविडेंड. कैश डिविडेंड अगर प्रॉमिस किया तो मतलब तुम्हारे अकाउंट में कैश क्रेडिट होना चाहिए. और स्टॉक डिविडेंड का दूसरा नाम क्या होता है? बोनस शेयर्स, क्योंकि ये भी तो एक डिविडेंड है, ये भी एक किस्म का बेनिफिट मिल रहा है, बट इट इज कॉल्ड एज बोनस शेयर्स. सो समटाइम्स बोनस शेयर्स कैन आल्सो बी कॉल्ड एज स्टॉक डिविडेंड. बट अगर हम लोग ने कैश डिविडेंड प्रॉमिस किया है, अगर कैश प्रॉमिस किया है तो तुमको बोनस शेयर दे सकते हैं? नहीं. No. नहीं. Moving ahead, procedure for bonus shares, again you will see same procedures. Articles, तुम्हारा बोर्ड रेजोल्यूशन, अभी दिख रहा है रेगुलेशन 29 आया, फिर ये तुम्हारा 29, 30 कॉमन पॉइंट्स घड़ी घड़ी देखोगे सेम आएगा. फिर इसके थोड़े कंडीशन स्पेसिफिकली लिख सकते हो, MGT 14, PAS 3 कॉमन पॉइंट्स. फिर शेयर सर्टिफिकेट्स इशू हो जाने चाहिए विद इन द रिक्विजिट टाइम. तो कितना टाइम लिमिट है? तो किसमें दिया है? सेक्शन 56 सबसेक्शन 4. और अगर you have to comply with listed company intimate depository also. Coming to the next topic called as sweat equity. अब देखते क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है sweat equity. Now sweat equity, have you all done it anywhere? SEBI. Okay. Now remember, sweat equity के sections बता रहा हूँ. Sweat equity is given under section 2 subsection 88. The definition of sweat equity. तो पहली चीज नाम में ही देख के बताओ ये क्या है. It is equity shares. So these are equity shares issued by, equity shares कौन इशू करेगा? कंपनी. इसको इशू करेंगे to the directors and employers. टू एम्प्लॉइज, डायरेक्टर्स एक्सेट्रा. अब ये लोग ने जो इशू किया इक्विटी शेयर्स, इन रिटर्न क्या एम्प्लॉय कैश देगा कि टेक्नोलॉजी देगा? Technology. So it will be issued in consideration other than cash. तो कैश नहीं देते वो लोग, क्या देंगे? मेकिंग अवेलेबल. वो लोग क्या देते हैं हम लोग को? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और एनी वैल्यू एडिशन बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड. समझ में आया ये? तो अगर मेरे एम्प्लॉय ने कोई सॉफ्टवेयर बनाया तो मैं वो एम्प्लॉय को बोलूंगा भाई मेरे इक्विटी शेयर पकड़ और मेरे को इन कंसिडरेशन ऑफ दैट इक्विटी शेयर्स क्या दे? IPR. Now this is just the definition. The provision is given under section 54. Okay. If you remember हम लोग ने किया था section 52, 53, 54, 55, 56. Remember? अभी just ऊपर sequence किया था. Section 54 talks about sweat equity. अब sweat equity के क्या conditions है?
यहाँ पे देखते हैं. सबसे पहले स्वेट इक्विटी इशू करना है तो कौन सा रेजोल्यूशन चाहिए? Special. स्पेशल रेजोल्यूशन. अब स्पेशल रेजोल्यूशन दूंगा तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी जाएगा. तुम लोग को आज कॉन्सेप्ट समझ में आया, वो भी थोड़ा धीरे धीरे करते 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 ये सब कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते, तो एक न्यू पर्सन को तो आइडिया ही नहीं होगा स्वेट इक्विटी क्या होता है. तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा टू एक्सप्लेन टू द शेयर होल्डर्स व्हाट इज दिस फीचर. अगर लिस्टेड कंपनी रहेगी तो किसको फॉलो करना पड़ेगा? लिस्टेड कंपनीज कौन से रेगुलेशन फॉलो करते हैं? 29 and 30. सेबी के रेगुलेशन. ऑलवेज रिमेंबर SEBI regulates listed companies. Okay, now let's see what they have given. Now, equity shares issued to the directors or employees at a discount generally for consideration other than cash for providing their know-how, making IPR, value addition by whatever name called. अब एम्प्लॉई कौन कौन है वापस दिया है एम्प्लॉइज. वैल्यू एडिशन क्या होता है वो बताएंगे वो लोग कि क्या वैल्यू सॉफ्टवेयर क्या है. तो ये सॉफ्टवेयर का तुमको वैल्यूएशन भी करवाना पड़ेगा. वैल्यूएशन सर्टिफिकेट निकालना पड़ेगा. वैल्यूएशन सर्टिफिकेट मतलब क्या कि मैं टेक्नोलॉजी दे रहा हूं तो क्या है वो टेक्नोलॉजी, कितनी की है आज मार्केट में कीमत, वो सब बताना पड़ेगा. समझ में आया ये? लेट्स सी. सेक्शन 54 अलाउस. अब इसके कंडीशन देखो. स्पेशल रेजोल्यूशन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में बताओ क्या क्या देना है. सेबी फॉलो करेंगे और लास्ट में नॉट लिस्टेड एंड यू विल हैव टू फॉलो कंपनी लॉ. अगर मैंने स्वेट इक्विटी इशू किया तो आंट दे सेम जस्ट लाइक इक्विटी शेयर होल्डर्स? कुछ भेदभाव होगा क्या? No. इक्विटी शेयर होते हैं. खाली स्वेट इक्विटी मतलब क्या? ये इक्विटी शेयर्स वो लोग ने पैसे देके नहीं, टेक्नोलॉजी देके लिया है बस. इन टर्म्स ऑफ राइट्स, डिविडेंड, एवरीथिंग दे रैंक पारी पासु. पारी पासु मतलब ऑन सेम फुटिंग. दे आर ऑन द सेम फुटिंग मतलब दे आर सेम जस्ट लाइक एनी अदर इक्विटी शेयर होल्डर्स. एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में क्या क्या डिटेल देना है वो यहाँ पे दिया है. वैलिडिटी हम लोग कैसे देखे थे, कभी कभार स्पेशल रेजोल्यूशन लेते तो फटाफट अलॉटमेंट हो जाना चाहिए. तो यहाँ पे भी क्या टाइमलाइन दिया है. अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं तो कितने टाइम के अंदर अलॉटमेंट हो जाना चाहिए? 12 months. विदिन 12 months. अब ये भी देखो, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है रूल. द कंपनी शैल नॉट issue sweat equity for more than 15% of the existing paid up capital in the company or 5 crore rupees, whichever is higher. 15% of paid up equity share capital, equity capital और 5 करोड़ से ज्यादा क्या नहीं करना चाहिए? स्वेट इक्विटी इतना ज्यादा इशू नहीं करना चाहिए. इशूएंस ऑफ स्वेट इक्विटी शैल नॉट एक्सीड 25% एट एनी टाइम. तो ये 15% क्या है? इन अ ईयर एंड 25% एनी एट एनी टाइम. इसका मतलब क्या है? मार्केट इज इंपॉर्टेंट. क्या मेरे एम्प्लॉई को मैं 30% बांट सकता हूँ इक्विटी का फॉर प्रोवाइडिंग? आंसर इज नो. लिमिट क्या है? 15% एट अ टाइम इन अ ईयर एंड 25% फॉर एवर, नेवर मोर देन दैट. समझ में आया ये? नाउ और 5 करोड़ से ज्यादा इतना का वैल्यू के ऊपर का या 15% विच एवर इज हायर, I cannot issue more than this. So can I keep on giving sweat equity to everybody? तो we will say भाई तुम एम्प्लॉइज को ही सब बांट दोगे तो तुम्हारी कंपनी बची क्या? Do you like to share, have more partners and more equity stake? Share the stake? No. तो गवर्नमेंट इज सेड जरा लिमिट में रहो, 20, 30, 25% ऐसा बांटने मत जाओ. इक्विटी शेयर्स जो स्वेट इक्विटी रहेंगे
तो एम्प्लॉइज को दे रहे, तो दे विल ऑल्सो बी लॉक्ड इन फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट. वैल्यूएशन करवाना पड़ेगा, इट विल बी डिटरमाइंड एंड दे विल गिव अ जस्टिफिकेशन. Sweat equity will be locked in for how much time? 3 years. But when it is locked for 3 years, when it is given to directors or employees, it will be locked in from 3 years from the date of allotment. Now mostly the provisions are done. It is given for non-cash consideration. It can form a part of the managerial remuneration. तो अगर managers को जो remuneration दे रहे हैं उसमें sweat equity दे सकते हैं. बोर्ड रिपोर्ट में डिटेल आ जाएगा और इसका भी अलग से रजिस्टर मेंटेन होगा इन SH3. तो देखेंगे हम लोग व्हेन वी डू रजिस्टर चैप्टर, तब सीक्वेंस से लोन होगा. याद तक समझ में आया? देन दिस इज द नेक्स्ट पार्ट, दिस वील डू लेटर ऑन.